Hello my dear ones, welcome to my YouTube channel, and today this is the dimensional analysis. We complete our 4 fundamental forces and next is the dimensional analysis. This is 1D, first D in your syllabus. And students, dimensional analysis में हम डिस्कस करेंगे. We take the 3 physical quantities. We take 3 physical quantities. First one is mass, second one is length, and third one is time. So students, we take here the 3 physical quantities: mass, length and time. So for mass we use here the symbol m. For length we use here the symbol L, and for time we use T here. Okay, so these are the 3 physical quantities and the dimensions of these physical quantities, that means the powers of these physical quantities. Let us take an example firstly. Suppose we take velocity, and as we know, velocity is equal to displacement upon time. Velocity is equal to displacement upon time. So displacement को हम क्या बोल सकते हैं? एक length. We can take displacement as a length. So we put here L because displacement is L. And time. And how we represent time? T. So this will become L by T, and we can write it as L T minus 1. Here the power of L is 1, power of T is minus 1. Why? Because we put the time from denominator to numerator. Clear? So we can take minus 1 here. So L1 T minus 1. Now अब हमारे पास क्या है? यहाँ पर मास की कोई बात नहीं हुई, तो हमने क्या करना है? मास की पावर को 0 लिख देना है. क्लियर? और हम इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देंगे. ठीक है? तो स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर ली, उसमें m0 L1 T minus 1. तो यहाँ पर हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? m0 L1 T minus 1. यहाँ पर डायमेंशन से मतलब क्या है? जैसे मैंने अभी पहले बोला था आपको कि डायमेंशंस मीन्स द पावर ऑफ दीज फिजिकल क्वांटिटी. So dimensions of velocities are 0, 1 and minus 1. So the base power, we can say the power of the physical quantities as well as the power of the bases. Base कौन है? M, L and T. Clear? So the power of the bases is known as the dimensional analysis. Clear? Or we can say dimension. Clear? So we use these dimensional analysis and we can calculate how the various physical quantities are represented in their dimensional form. Okay, so one by one we can represent here. Yes, first one is momentum. देखिए स्टूडेंट्स, मोमेंटम के बारे में आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है. दैट मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. कि मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं ना. तो अब मास को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? m से. मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिख लेंगे? m. और एज वी नो कि वेलोसिटी अभी हमने किया कैलकुलेट, वेलोसिटी का क्या है? m0 L1 T minus 1. क्योंकि हमने वेलोसिटी को क्या लिखा था? वेलोसिटी को हमने लिखा था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट क्या था? L, टाइम क्या था? T. और हमने उसको अभी क्या रिप्रेजेंट किया था? m0 L1 and T minus 1. You can use it here. Okay, so this will become, here m's power is 1, here m's power is 0. So this will become m1 L1 T minus 1. So this is the dimensional formula of momentum. Clear? I can write it here. I can write it here in the equal sign.
दिस विल बिकम m1 L1 T minus 1. Clear? So this is the dimensional formula of momentum. And next we can take example of acceleration. स्टूडेंट यहाँ पर जो है आपको वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखना है. दैट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी इज m0 L1 T minus 1. व्हाई? बिकॉज वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने में यूज होता है. ठीक है, तो वो आप रिमेंबर रखोगे यहाँ पर m0 L1 T minus 1. ओके, नाउ एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. यही होता है dv by dt, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. हमारे पास वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? m0 L1 T minus 1. क्लियर? एंड टाइम का हम लिख देते हैं t. अब क्या करेंगे? अब टाइम को कहाँ ले जाएंगे? ऊपर ले जाएंगे. तो क्या बन जाएगा? देखो m0 L1 T minus 2, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है? -1. ये जो 1 है यहाँ पर 1 पावर है और ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? -1 कितने हो गए? -2. तो m0 L1 T minus 2. क्लियर? एंड द थर्ड वी कैन टेक फिजिकल क्वांटिटी. जो थर्ड हम लेकर चल रहे हैं दैट इज फोर्स. थर्ड वन इज फोर्स. एंड एज वी नो, ये भी हमने 9th स्टैंडर्ड में कर लिया था, दैट फोर्स इज इक्वल टू ma मास इनटू एक्सेलरेशन. फोर्स हमने न्यूटन सेकेंड लॉ से की थी. फोर्स इज इक्वल टू ma. सो यहाँ पर जो है हमारे पास मास का तो हमने क्या लिख लेंगे? m में लिख लेंगे. ठीक है, और a एक्सेलरेशन का हमने अभी कैलकुलेट किया. क्या था? m0 L1 T minus 2. क्लियर? m0 L1 T minus 2. So this will become m1 L1 T minus 2. m1 L1 T minus 2. So this is the dimensional formula of force. Clear? And the fourth one is pressure. Now student, ये क्वांटिटी भी हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी है. दैट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. ये पढ़ा था. प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है आपको फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है जिसमें हम फोर्स का यूज करते हैं. ठीक है, सो फोर्स इज इक्वल टू m1 L1 T minus 2 अपॉन एरिया. एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ. मीनिंग है तो दोनों लेंथ ही, ब्रेड्थ भी तो, यूनिट्स तो उसकी लेंथ वाली ही होती हैं. तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? L स्क्वायर, लेंथ इनटू ब्रेड्थ. ओके, तो दिस विल बिकम m1 L1 L1 नहीं 1 minus 2 कितना बन जाएगा? -1. L minus 1 T minus 2. Clear? And fifth physical quantity which we take, that is work. अब वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. क्लियर? तो फोर्स क्या है हमारे पास? फोर्स का फॉर्मूला m1 L1 T minus 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? लेंथ. ठीक है, तो यहाँ पर हम लेंथ को यूज कर रहे हैं L. क्लियर? तो हमारे पास क्या बन जाएगा? दिस विल बी m1 L2 T minus 2. m1 L2 T minus 2. अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो सिक्स्थ है हमारे पास एनर्जी. अब एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इज द वर्क डन, कि हमने कितना काम किया. ठीक है, सो एनर्जी को हम किसके इक्वल रखेंगे? वर्क के. अब अगर एनर्जी वर्क के इक्वल है तो उनके डायमेंशन फॉर्मूले भी आपस में सेम होंगे. ठीक है, सो डायमेंशन फॉर्मूले सेम है, मीनिंग जो वर्क डन है उसका डायमेंशन फॉर्मूला भी क्या बन गया? m1 L स्क्वायर T minus 2. ठीक है, तो इसी तरह से अगर वर्क का फॉर्मूला
वर्क अगर एनर्जी के इक्वल है तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी टाइप की एनर्जी हो सकती है, वो उस एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या रहेगा, यही सेम m1 l स्क्वायर l2 यानी कि nt-2, ठीक है। सो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क डन, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, दे ऑल आर इक्वल हियर। क्लियर, समझ आया यहाँ तक ना। उसके बाद नेक्स्ट इज we have seventh dimensional formula and that one is, yes, seventh one is moment of inertia, moment of inertia. Clear? Now students, there are most of the terms which you don't know, that means in this one मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने नहीं पढ़ा हुआ है ना, आपको नहीं पता कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो बेसिकली जो है ये आपके +1 के 5th चैप्टर में आएगा, जो आपका सर्कुलर मोशन वाला चैप्टर है उसमें आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अगर आपको फॉर्मूला पता लग जाए तो हम उसका डायमेंशनल फॉर्मूला रेडी कर सकते हैं, ठीक है, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, मास इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब हम वेरी इजीली इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया m, ठीक है, और d स्क्वायर, d मतलब डिस्टेंस, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया l स्क्वायर। क्लियर, तो हमारे पास यहाँ पर t की जरूरत नहीं पड़ रही है, t हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो m l स्क्वायर t0, ml स्क्वायर t0, t0 लिखा है, इसका मतलब किसी भी डिजिट की पावर अगर 0 होती है तो हम उसको 1 लेते हैं ना। तो अगर यहाँ पर आप नहीं रिप्रेजेंट करना चाहते, आप ऐसे लिखना चाहते हो ml स्क्वायर, देन दिस विल आल्सो सफिशिएंट, ठीक है, तो भी गलत नहीं है। तो ml स्क्वायर t0 हमने लिखा है वो भी गलत नहीं है, ठीक है। तो t0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर 1, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास सरफेस टेंशन। अब आपने सरफेस टेंशन भी नहीं पढ़ा हुआ ना, क्या होता है सरफेस टेंशन। ये कुछ एक ऐसी टर्म्स हैं जिनके डायमेंशनल फॉर्मूले जैसे जैसे आप चैप्टर करते जाओगे वैसे आपको समझ आते जाएंगे, ठीक है। सो अभी आपको फॉर्मूला समझकर उसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो याद कर लेना, ठीक है। तो सरफेस टेंशन क्या है, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, मीनिंग कि एक रोड है हमारे पास, उसकी प्रॉपर सपोज करो L लेंथ है, तो उस L लेंथ पर कितनी फोर्स लग रही है, दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, ठीक है। अब फोर्स का हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला हमने अभी पीछे किया था, क्या होता है फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, m1 l1 t-2, यही किया था, m1 l1 t-2 अपॉन लेंथ को हम लिख सकते हैं l, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, m1 l, 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, पर जो नीचे वाला 1 है जब वहाँ ऊपर डिनोमिनेटर में जाएगा तो डिनोमिनेटर में जाकर वो -1 बन जाएगा, तो 1 - 1 0, दैट मीन्स m1 l0 t-2 here, okay, m1 l0 t-2, so this is the dimensional formula of surface tension, ठीक है। तो 9th वन इज, एक आप पढ़ोगे यहाँ पर टॉप के बारे में, बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि नई नई टर्म्स आ रही हैं, बट घबराना नहीं है, ये सारी आपके चैप्टर्स में आएंगी, जैसे जैसे आप नेक्स्ट फर्दर करोगे तो वो चैप्टर्स में टर्म्स आती जाएंगी, इसीलिए मैं आपको साथ साथ यहाँ पर फॉर्मूला बता रही हूँ ताकि आपको डायमेंशनल फॉर्मूला जो है उसका बनाना ईजी हो जाए, ठीक है। सो टॉर्क, टॉर्क क्या होती है, रोटेशनल फोर्स, मतलब कि फोर्स जो एक हम कहेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर लग रही है, ठीक है। सो टॉर्क क्या होगी, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब 90 डिग्री के एंगल पर जो फोर्स लग रही है, ठीक है। सो फोर्स, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला है, देखो फोर्स कितनी बार यूज हो रहा है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि फोर्स जो है वो उसका डायमेंशन फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो फोर्स हम यहाँ पर यूज करेंगे m1 l1 t-2, क्लियर।
इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस ही, उसको हम एल लिख लेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको एल लिख रहे हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, m1 l2 t माइनस 2, m1 l2 t माइनस 2। सो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ टॉर्क, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज, यहाँ पर हमने किया एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सरफेस टेंशन एंड टॉर्क, क्लियर। एंड आवर नेक्स्ट इज स्ट्रेस, nth वन इज स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस इज ऑल्सो इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अभी हमने पीछे किया था प्रेशर, प्रेशर और स्ट्रेस जो है सेम है। प्रेशर में हमने जो फोर्स ली थी वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, बट जो यहाँ पर स्ट्रेस में हम फोर्स ले रहे हैं वो एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी, इस चीज का फर्क है। पर बाकी यूनिट्स तो दोनों की सेम ही है, इसलिए डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम बनेगा। तो हमारे पास फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, m1 l1 t माइनस 2 अपॉन एरिया क्या हो गया, l स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी m1 l माइनस 1 t माइनस 2, clear. So this is the dimension formula of stress. And next one is 10 dimension formula हो गए, 11th one, is strain. स्ट्रेन क्या होता है, देखो स्ट्रेन इज द चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। मीनिंग सपोज आपने एक रबड़ बैंड लिया, रबड़ बैंड को आप क्या कर रहे हो, स्ट्रेच कर रहे हो, ठीक है। जब आप उसको स्ट्रेच करते हो तो उसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज कर जाती है, लेंथ इंक्रीज कर गई। तो जब आप उसको मतलब जितना उसको आपने बाद में छोड़ दिया, सपोज लेंथ इंक्रीज कर गया, तो उसकी लेंथ जो है वो छोड़ने के बाद पहले जितनी नहीं रहती है, उसमें थोड़ा सा क्या जाता है, एक्सटेंशन आ जाता है। तो कितना लेंथ में चेंज आया, क्लियर, और उसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी। दोबारा देखो, सपोज आपके पास क्या है, एक रबड़ बैंड है, ठीक है। स्टार्टिंग में उसकी लेंथ थी सपोज 5 सेंटीमीटर, ठीक। हमने क्या किया, उसको खींचना शुरू कर दिया, है ना। जब हम उसको खींचेंगे तो उसकी लेंथ में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, लाइक 5.2 खींचने के बाद छोड़ दिया, फिर उसकी लेंथ में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, सपोज 0.2 सेंटीमीटर का आ गया। तो कितने सेंटीमीटर का चेंज आया, 5.2 माइनस 5 0.2। तो ये चेंज इन लेंथ 0.2 वो ऊपर है, अपॉन ओरिजिनल लेंथ नीचे कितनी थी, ठीक है। ओरिजिनल लेंथ क्या थी, मीनिंग 5, चेंज इन लेंथ मीनिंग 0.2, तो उसको आप क्या बोलते हो, स्ट्रेन, क्लियर। तो अब इसके डायमेंशन फॉर्मूला निकालने हैं। देखो ऊपर क्या है, लेंथ मीनिंग लेंथ, नीचे क्या है, लेंथ, तो ये तो कैंसिल हो गई। तो इसका मतलब ये कौन सी क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस, मीनिंग इसकी कोई डायमेंशन ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ऊपर भी सेम लेंथ वाला, सेम डायमेंशंस थी, लेंथ की ही, नीचे भी लेंथ की ही है, दोनों कैंसिल हो गई हैं, मीनिंग इट इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी, क्लियर। नेक्स्ट इज 12th वन is refractive index। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है ना, हम पढ़ के आए हैं, उसमें लाइट चैप्टर में आता था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वन मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, यही था ना। तो ऊपर भी क्या है, देखो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वन मीडियम, उसको हमने लिख लिया v1 से, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते थे, याद होगा आपको, ठीक है। तो v1 और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम उसको हमने लिख लिया v2 से। हमें पता है कि वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, lt-1, और वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला अगेन lt-1, ये कैंसिल हो गया, तो मीनिंग क्या बना, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, clear. So this will be also a dimensionless quantity, clear. And 13th one is mechanical advantage। मैकेनिकल एडवांटेज,
तो यहाँ पर जो मैकेनिकल एडवांटेज की हम बात कर रहे हैं, मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, मैकेनिक से आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर हमने कोई फोर्स लगानी है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ऊपर क्या है लोड, ठीक है, नीचे क्या है एफर्ट। लोड एफर्ट जो है उससे आपको गैस हो गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने कोई चीज़ खींचनी है, ठीक है, तो नीचे मान लो उसको लटकाया हुआ है हमने, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको नीचे की तरफ हमने लटकाया है, हमने उसको क्या करना है ऊपर की तरफ खींचना है ना। तो नीचे क्या है वो एज अ लोड, ठीक है, नीचे वो वेट जो है उसका फोर्स लगा रहा है, वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, एंड हमने क्या करना है एफर्ट लगा के उसको ऊपर की तरफ खींचना है। तो हम भी क्या अप्लाई कर रहे हैं फोर्स, मीनिंग ऊपर भी फोर्स लग रही, सॉरी नीचे भी फोर्स लग रही है, ऊपर भी फोर्स लग रही है। दो लोड एंड एफर्ट बोथ आर द फोर्सेस। सो इसमें हम क्या करेंगे, लोड का डायमेंशनल फॉर्मूला मीनिंग फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला वो क्या है ML_P-1 मीनिंग M1L1T-1, ठीक है। सो एफर्ट का M1L1T-1 दिस विल बिकम कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है। तो ये हो गया डायमेंशनलेस, क्योंकि यहाँ पर M भी 0 हो गया, L भी 0 हो गया, T भी 0 हो गया। सो स्टूडेंट्स दीज आर सम ऑफ द डायमेंशनल्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। सो फर्दर इनकी डायमेंशंस ये बहुत सारी हैं, ये 250 क्रॉस कर जाती हैं, तो 250 से ज़्यादा हैं ये, ठीक है, डायमेंशंस जितनी भी हैं। तो हम जो है हम सारी नहीं करेंगे, हम कुछ एक मेन ही करेंगे। तो उसमें मैंने जो वीडियो है उसके 3 पार्ट्स बनाए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में हम जो है 13 जो डायमेंशंस हैं वही डिस्कस कर रहे हैं। फर्दर जो है हम वो सेकेंड वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक आपने क्या करना है, इन सभी को अपनी नोटबुक पर अच्छे से नोट कर लेना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज आवर फर्स्ट वीडियो ऑफ डायमेंशंस एनालिसिस, एंड नेक्स्ट डायमेंशंस वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।